Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome to maths class once again. Okay. So students, yesterday we have started with a new exercise, that is 6.6. Okay, and that exercise is related to estimation and division. तो हमने कल 6.6 जो स्टार्ट की थी वो एस्टिमेशन रिलेटेड टू डिवीजन उसमें हमने किया था, एंड इन दैट वी हैव डन एस्टिमेटेड द क्वेश्चन. सो इन दैट उसमें हमें क्वेश्चन का था जो एस्टिमेट, जो क्वेश्चन होता है डिवीजन में उसको हमें एस्टिमेट करना था ऑफ डिफरेंट सम्स. ओके, सो वी हैव डन ऑलरेडी 15 सम्स ऑफ दैट एक्सरसाइज, and today I'm going to start with the 16th question of the same exercise 6.6. okay, write a story for each of the following sentence. So we have to write a story for each of the following sentences. okay, so देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, the question is, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ so that it will be easy for you to understand it. Okay, 16 question is 750 divided by 100. This is your question number 16. And if you look at the book में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, write a story for each of the following sentences. इस डिजिट के लिए हमें एक स्टोरी लिखनी है. दैट मीन्स अभी तक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती थी और उसमें से आप उसका आंसर फाइंड आउट करते थे. ओके, बट अभी आपको नंबर सेंटेंस दिया है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड प्रॉब्लम फॉर इट. मतलब आप इसको इसमें आपको स्टोरी बना के लिखनी है. इसके लिए इस सम के लिए 750 डिवाइडेड बाय 10 है. सॉरी, इट इज नॉट 100, इट इज 10. ओके, सो आपको अब इसके लिए एक स्टोरी बनानी है. कैसे स्टोरी बन सकती है बेटा? देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरी दैट यू कैन मेक. Okay, you can take examples from your book also. As you can see, there are different examples in your book also. Okay, so अभी हम एक स्टोरी बनाते हैं. Let's make a story that there are 750 mangoes or there are 750 apples in a big basket. There are 750 mangoes. Okay, or in different basket you can say. There are 750 mangoes in different baskets. Okay, and we have to distribute that mangoes among 10% equally. So now we have to find out the total number of or the equal division of mangoes between all the 10 persons. ये भी लिख सकते हैं. Other examples भी हम लिख सकते हैं. Like just I am taking one example from a book only. The price of 10 books is rupees 750. Find out the price of one book or each book. Okay, if the price of all the books is same. Okay, so हमें ऐसे बना सकते हैं. So we will make some sentences like this only. So I'll just write down some example for you. So solution में हम क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए? The price of 10 books is rupees 750. Okay, this price of 10 books is rupees 750. Full stop. Find the price of each book, comma, if the price of all the books are same. ओके, सो मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट बनाई? द प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज रुपीज 750. फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बुक. हमें एक बुक का प्राइस फाइंड आउट करना है. इफ द प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स आर सेम, और हर बुक का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है. तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया. अब हम इसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाई. ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बनानी है बेटा, इसमें आपको ज्यादा नहीं करना, जस्ट यू हैव टू मेक द स्टेटमेंट ओनली.
Okay, so this is your question number 16 from exercise 6.6. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम एक्सरसाइज 6.6. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 के लिए भी स्टेटमेंट बनानी है, एंड दैट यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ ओनली. ओके क्लास, सो जस्ट मेक श्योर जो स्टेटमेंट बनाए दैट शुड बी स्टोरी. कोई भी जैसे डिवाइडेड बाय या इफ इट इज डिवाइडेड बाय दिस इट इज डिवाइडेड, ऐसे कुछ नहीं बनाना है. जस्ट मेक अ स्टोरी कि कोई परचेज किया है, उसका प्राइस इतना है, और लाइक दिस. ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 and this question number 17 and 18 is same like that only. So I am giving you, that is your homework. So your homework for today is that you have to do question number 16, 17 and 18 of exercise 6.6. Okay, so now moving to the next exercise. Now we have finished with the exercise 6.6. अब हमारी 6.6 exercise खत्म हो गई है. So अब हम आगे मूव करेंगे. So the next topic of this chapter is problems of 4 fundamental operations. Problems of 4 fundamental operations. Yes, 4 fundamental operations कौन से हैं मैथमेटिक्स के? Yes, I am just going to erase it. देखिए, हम इसमें जो फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं वो क्या है? Now it's exercise 6.7. ओके, चलिए छोड़िए. सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए. दिस इज BODMAS, दैट इज बोर्ड मास. सो ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ बोर्ड मास. ये एक रूल है, फंडामेंटल रूल ऑफ मैथमेटिक्स है. सबको इसका मीनिंग पता है. जिनको नहीं पता, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड दोज हु ऑलरेडी नो, दैट इज वेरी गुड. ओके, B मीन्स ब्रैकेट, O means off, D means division, M means multiplication, A means addition, okay, and the S means subtraction. Okay, S means subtraction. इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ बोर्ड मास. ये बोर्ड मास का रूल है. ओके क्लास, इसको आगे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसके पहले 2 वर्ड्स है B एंड O, दैट इज बो, वो आपके सिलेबस में नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस with you all. Okay, so I'm just erasing it for now. Okay, so now you are left with only D mass. Now you are left with only D mass. This is the 4 fundamental operations of mathematics. Okay, so ये D mass है. इसकी देखिए D mass, D means division, M means multiplication, A means addition, and S means subtraction. सो ये 4 जो डी मास है, इसके बारे में हम क्या बात करेंगे. इसके अकॉर्डिंग बेटा ये है कि अगर हमें कोई सम दिया गया है, नॉर्मल सम ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो दिया गया है, इफ देयर इज एनी सम विच इज रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो बेटा उसमें हम ये डी मास का रूल लगाते हैं. ओके, जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको एक ही सम के अंदर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कुछ दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन सब कुछ दिया है, तो उसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, वो इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं. जैसे सबसे पहले D है, D मीन्स डिवीजन. अगर उस समय अगर डिवीजन दी हुई तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे. ओके, अगर नहीं दी हुई है तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ऐसे करेंगे. ओके, अगेन अगर फिर मल्टीप्लीकेशन दी है तो मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, देन एडिशन करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्लियर, स्टेप बाय स्टेप चलना है. सपोज अगर डिवीजन दी है, मल्टीप्लीकेशन दी थी, सीधा एडिशन दी है और सब्ट्रैक्शन दी है, तो हम मल्टीप्लीकेशन को स्किप कर देंगे, एंड देन वी विल मूव टू द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. ओके, सो दिस इज द रूल ऑफ डी मास जो हमें फॉलो करना है व्हाइल डूइंग सिंप्लीफिकेशन. क्लियर, सो दिस इज द रूल ऑफ डी मास. सो नाउ इन द एक्सरसाइज 6.7 वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल, ओके, इन एवरी सम. सो जस्ट लेट्स बिगिन विद द सम. ओके, ओके, ये याद रखना बेटा, डी मास इज डिवीजन, M is multiplication, A is addition, and S is subtraction. You can just pause the video and write it down, the rule of the 4 fundamental operations, okay, of
mathematics. Okay, so this is DMAS: division, multiplication, addition and subtraction. Clear? So now I'm just going to erase it. Moving next, so let's start with the sum. Okay, here the first sum is, okay, exercise first is, okay, इसमें आपको बेटा एक चीज करनी पड़ेगी, एक थोड़ा सा आपको साइड में रफ वर्क के लिए स्पेस छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हैं, तो मतलब काफी सारे कैलकुलेशंस हैं, तो इसलिए हमें इसको थोड़ी सी स्पेस छोड़नी पड़ेगी. क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30,983 minus 17,803 minus 26,351. Okay, and the last is plus 31,370. Okay, so this is the first sum of the exercise 6.7. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अच्छा, इससे पहले एक चीज और बेटा आपको मैं समझाऊं. देखिए, अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन होता है, दैट मीन्स जैसे इसके आगे 17 के आगे माइनस का साइन हो, तो दैट मीन्स ये 17 माइनस होगा. 26,351 के आगे माइनस का साइन, तो ये माइनस होगा. इसके आगे प्लस का साइन, दैट मीन्स ये नंबर प्लस होगा. बट यहां देखिए 30,983 है, इसके आगे कोई साइन है किसी भी नंबर के आगे? नो. अगर किसी डिजिट के आगे या किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं दिया होता, देन वी कंसीडर इट एज अ साइन ऑफ एडिशन. हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, उसको प्लस करते हैं. क्लियर? अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं दिया होता तो वी कंसीडर इट एज प्लस. क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 30,983 क्या होगा? ऐड होगा. Clear class? So let's begin with the sum. Okay, so देखिए according to the DMAS rule हमें क्या करना है. So first of all DMAS, D means division, इसमें division है? No. M multiplication है? No. Addition, A addition है? Yes. तो add हम किसको किसको करेंगे? जो कि हमारे दो एडिशन वाले नंबर्स है, दैट मीन्स इन दोनों को. Clear? So now we are going to add 30,983 and 31,370. आपको अंडरलाइन नहीं करना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि बिकॉज दे बोथ आर ऑफ एडिशन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट. ओके, सो हम एडिशन जो करेंगे इसकी रफ में करेंगे. 31,370 प्लस 30,983. Now we are going to add this. Okay, अब देखिए हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं. 0 + 3 3, 7 + 8 15, 3 + 1 4, 4 + 9 13, 1 + 1 2, 3 + 3 6. कितना आ गया? 62,353. 62,353 that we have got after adding the first and the last digit because they both are of addition. Okay, so we हमें यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे एंड वी विल राइट इट लाइक इन दोनों का जो आंसर है प्लस करके उसको यहाँ लिखेंगे 62,353. ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया. दैट मीन्स अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया, तो इसको मैसेजेस नीचे उतारेंगे. -17,803 minus 26,351. Okay, now next step. That next step is again हम उसी रूल को फॉलो करते हुए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब में नहीं है, तो इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. सो देखिए सबसे पहले इसमें एडिशन है कोई, सिर्फ इसमें एक ही एडिशन का सम है, एक ही एडिशन पॉजिटिव नंबर. सो दैट मीन्स आप उसको नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हम
फर्स्ट ये 62,353 में से हम 17,803 को माइनस करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल माइनस 17,803 फ्रॉम 62,353. तो मैं इसको यहीं पर इसके नीचे माइनस कर लेती हूँ. सो हम इसके नीचे क्या माइनस करेंगे? 17,803. 3 minus 3, 0. 5 minus 0, 5. 13 minus 8, 5. 1 is here. 11 minus 7, 4. And 5 minus 1 is 4. So the answer is 44,550. 44,550. ओके, सो दैट मीन्स इन दोनों को भी हम सॉल्व कर चुके हैं. अब हमारे पास क्या रहेगा सिर्फ ये लास्ट वाला, दैट इज माइनस 26,351. ओनली दिस वन इज लेफ्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस 26,351 फ्रॉम 44,550. सो आई एम गोइंग टू अगेन सब्ट्रैक्ट हियर ओनली 26,351. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट हियर. 0 minus 1 not possible, it will become 10 and it will become 4. 10 minus 1, 9. 4 minus 5, possible? No. It will become 15 and it will become 4. 14 minus 5, 9 again. 4 minus 3, 1. 4 minus 6, not possible, it will become 14 and it will become 3. Okay, 14 minus 6, 8. 3 minus 2 is 1. So the answer is 18,199. ओके, आई होप आपको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एवरीबडी, द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज क्लियर टू यू ऑल. आई होप दैट. ओके, सो द आंसर इज 18,199. सो हम अलग से भी इसका आंसर मेंशन करेंगे. आंसर इज इक्वल टू 18,199. ओके, so this is how we are going to solve the sum. First of all हम पूरा sum लिखेंगे and then we will follow the rule of DMAS, that is division, multiplication, addition and subtraction. So division is not here, multiplication is not here, but addition is there. Okay, so हमने दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे, पहले उनको प्लस किया and we got the answer 62,353. फिर बाकी जो दो नंबर्स थे उसको हमने एज इट इज उतार लिया. देन अगेन हमने डी मास का रूल फॉलो किया. देयर इज नो डिवीजन, नो मल्टीप्लीकेशन. अब तो एडिशन भी नहीं है, क्योंकि एडिशन का सिर्फ पॉजिटिव या फिर प्लस वाला सिर्फ एक डिजिट है. क्या एक डिजिट को प्लस कर सकते हैं किसी चीज के साथ? नो. तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, दैट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फर्स्ट हमारा आंसर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 17,803 को. वी गॉट 44,550. फिर एज इट इज जो लेफ्ट नंबर था उसको नीचे उतारा एंड आफ्टर दैट फिर अगेन हमने माइनस किया, क्योंकि हमारे पास और कोई डी मास में से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन अवेलेबल नहीं था. एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 26,351 वी गॉट 18,199. सो दिस इज आवर आंसर of your first question. Okay class, so the answer is 18,199. Clear? So I hope you got this sum. Okay, so now we are going to solve some other sums also, so that the concept of this DMAS is clear to you all. So you just pause the video and you can just pause the video and write the solution from here. And don't forget to leave space for the rough work, especially along with these sums. ओके, इस सम्स में आपको अलग से पेज छोड़ना ही है फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज अगर आप यहाँ पे करोगे वो एकदम गंदा सी कॉपी हो जाएगी. जस्ट मेक श्योर यू मार्क अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड डू ऑल योर रफ वर्क देयर. ओके, कॉपी के बैक साइड में मत करना, वरना पूरी कॉपी भी जैसे खत्म कर दोगे आप लोग. क्लियर? सो जस्ट डू द रफ वर्क लाइक दिस ओनली. एंड यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर दीजिए रफ वर्क. क्लियर? और अगर आपके एग्जाम्स में भी ऐसे सम आता है देन यू आर गोइंग टू सॉल्व लाइक दिस ओनली बाय यूजिंग द कॉपी ऑफ a portion of the answer sheet like this for the rough work. Clear class? So now moving next to the third one. Now moving next to the third one. Oh sorry, the second one. Okay, as you can see, the second sum is 570 minus 320 divided by 10. Okay, as it is same है, वही आप अपने आप करिएगा. Okay, just try to do it yourself.
यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। ओके, तो देखिए इसमें डी मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होगी देन सब्ट्रैक्शन होगी। क्लियर, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स है तो आप इजिली कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज 710 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 813 माइनस 2526। सो इन दिस सम देयर आर 3 स्टेप्स। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि 3 स्टेप्स होंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। Let's do one more sum of this same exercise. Question number 3 is 710 multiply by 12 plus 8013 minus 2526. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए अब हम इसमें डी मास का रूल लगाएंगे क्लास। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डी, दैट इज डिवीजन। तो क्या यहाँ पे डिवीजन है? नो। देन नेक्स्ट एम मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इज देयर, यस इट इज देयर, दैट मीन्स दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। सो दैट मीन्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगेन वी विल लीव सम पोर्शन फॉर द रफ वर्क। क्लियर, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 710 विथ 12। सो 710 multiply by 12, 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Okay, cross 1 zeros are 0, 1 ones are 1, 1 sevens are 7. Okay, now we are going to add this 2 0 2 5 8. So the answer is 8520. After multiplying these both these numbers, हमें से लाइन नहीं लगानी है। After multiplying both these numbers, we got 8520. So that means it is solved now. अब हमारे पास क्या बचा? प्लस 8013 माइनस 2526. Only this one is left. Okay. So next again same rule from the starting, D mass, D division। अब इस स्टेप में क्या डिवीजन है? नो। मल्टीप्लीकेशन नो, एडिशन यस। देखिए अब इसके आगे एडिशन का प्लस का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट एज एडिशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ दीज नंबर्स। अब इसको हम ऐड करेंगे। क्लियर, सो लेट्स ऐड 8520 एंड 8013। 8013 here it is। इसको हम ऐड करेंगे। 0 plus 3 is 3, 2 plus 1 is 3 again, 5 plus 0 is 5 and 8 plus 8 is 16. So the answer is 16,533. Okay, so this is the answer that we got after adding both these numbers. So the last one is subtract 2526। तो हमारे पास यही बचा है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो कैन वी सब्ट्रैक्ट देयर? ओके, देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, उसी के नीचे नीचे आप सॉल्व करके इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। बार बार आपको स्टेट में तो आने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट हियर ओनली 2526। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 minus 6 not possible, it will become 13 and it will remain 2। 13 minus 6 is 7, 2 minus 2 is 0, 5 minus 5 is 0, 6 minus 2 is 4 and 1 is there. So the answer is 14,007. 14,007. Okay, so we will write the answer here also. So your answer is 14,007. This is your answer. क्लियर, सेम लाइक पीछे जो हमने फर्स्ट सम किया था बिल्कुल उसी की तरह ये सम भी है बेटा, बस इसमें 3 स्टेप्स है। हो सकता है आगे कोई सम आए तो उसमें चारों की चारों स्टेप्स हो, दैट मीन डिवीजन भी हो, मल्टीप्लीकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन हो। ओके, सो सेम लाइक दिस यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.7। क्लियर, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 6.7। ओके, सो हमने सबसे पहले सम उतारा, देन फॉलोइंग द रूल वी स्टार्टेड विद द मल्टीप्लीकेशन and we got answer 8520. Then we add both these numbers, we got 16,533 and from 16,533 we subtracted
2526, and the last we got answer 14,007, that is 14007, and this is our answer number 3 of exercise 6.7. So just pause the video and you can just write down the answer from here. Okay class? So now moving next to the next sum. Okay, so let's begin with the next sum, that is sum number 4. देखिए इस सम में देखिए एग्जैक्टली जैसे अभी हमने जो सम क्वेश्चन नंबर 3 किया था, दिस इज ऑल्सो लाइक सेम. ओके, 4200 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 7123 माइनस 4120. सो इसमें भी 3 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज दैट वी हैव टू डू द डिवीजन, देन वी विल डू द एडिशन, एंड द लास्ट वन इज टू डू द सब्ट्रैक्शन. Okay, so same like sum number 3, this is also sum number 4, and that is you are going to solve by yourself. Clear class? So now moving next to the fifth one. The fifth question is 125 multiplied by 42 divided by 7 and plus 609. Okay, so देखिए इसमें भी हमारे पास 3 ही हैं. So देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, exactly like the sum number 3. So first of all we will do the division, then multiplication, and at last we will do the addition. Clear? So इसमें भी हमारे 3 steps हैं. So I hope that you can solve this one also. Okay, and if you are having any kind of doubt, you can clear that doubt in the online class. Clear class? Okay, so let's move to question number 6. That is 529 multiplied by 71 minus 630 divided by 42. Okay. इसमें भी बेटा 3 स्टेप है, बट लेट्स सॉल्व दिस सम. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस सम. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस सम अलोंग विद यू ऑल. इट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज 529 मल्टीप्लाई बाय 71 माइनस 630 divided by 42. Clear? Sorry, I just forget to erase the notebook. Okay, so now it is fine. Okay, now we are going to solve this question also. Okay, so first one is that you have to, according to the rule, we have to do the division. So that means हम किसको किसको डिवाइड करेंगे, 630 और 42 को. अब आप कहोगे मैम इसके आगे तो माइनस का साइन है, बट बेटा अगर किसी 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो या डिवीजन का साइन होता तो उन दोनों नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे. ये नहीं कि सिर्फ इसको माइनस करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे. क्लियर? सो अगर आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिवाइड 630 विद 42. मतलब सबसे पहले हमें डिवीजन करनी है. सो दैट मीन हम इसको एज इट इज लिख लें. 529 मल्टीप्लाई बाय 71. Sorry, 71 is there ना? Yes. Okay, and the minus को हम ऐसे as it is लिख लेंगे. Now हम इसको पहले solve करेंगे. 630 divided by 42. Okay, so अगर इसको solve करेंगे 42 ones are 42, 1 is there, 2 is there, and 0 is there. Okay, 42 5s are 210. So the answer is 15. So the answer is 15. So after dividing 630 by 42 we got 15. हमारे पास कितना आंसर आया, 15. Okay. So now next step. Now we have to do the division is done. Now we have to do the multiplication. So that means we are going to multiply both these numbers. Okay, so I'm just erasing it, but you are having lots of space on your notebook, तो आप उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. Okay, so 529 multiplied by 71. Okay, 1 9s are 9, 1 2s are 2, 1 5s are 5. Now 7 9s are 63, 7 2s are 14, 14 plus 6 20, 7 5 is 35 plus 2 37, 9 5 5 7 3.
So the answer is 37,559. इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास कितना आया? 37,559. अगेन माइनस एंड माइनस 15. क्लियर? नाउ सिंपली वी विल डू द माइनस. देखिए हम इसका जो आंसर आ रहा है इसके आगे माइनस का साइन है, जिसका आंसर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? अब माइनस. ओके, सो नाउ वी विल सबट्रैक्ट 15 फ्रॉम इट. Minus 9 minus 5 is 4. 5 minus 1 4. 5 7 3. So the answer is 37,544. Clear? So at last we will write the answer again. That is 37,544. Clear? So this is your answer of question number 6. You can just pause the video and write the solution from here. Okay class? So this was your exercise 6.7 and your homework is that you have to do the rest of the sums of exercise 6.7 from 1 to 6. 1 to 6 के बीच में जो हमने sums 3 sums नहीं किए, that is sum number 2, 4 and 5, that you are going to solve by yourself only. Okay class? So this is for today's session and tomorrow I will see you again with some other topics. So till then class, have a good day.